Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हम कर रहे थे। चलिए हो गया, ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस अपन कर रहे थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे भाई साहब डाइपोल, ठीक है। सो what is the electric field due to a dipole? That is something that we are going to discuss today, ठीक है। The electric field that is applicable due to a dipole, that is something that we are going to consider today, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या क्या अपन अभी तक जान चुके हैं। What are the things that we have discussed till now, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड their रिप्रेजेंटेशन, कैसे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है भाई साहब आपका। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ये आपका भाई साहब एल होता है या 2L होता है, जैसे एप्लीकेबल, ठीक है। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस मेक अ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट जॉइनिंग अ डाइपोल, तो ये सब हम पढ़ेंगे भाई साहब। Electric field at an equatorial point, electric field at any point on the dipole, and dipole in a uniform electric field. So these are the things that we are going to cover. Okay, चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं पहले डाइपोल से, ठीक है। What is basically a dipole? Okay, what is a dipole बच्चा पाड़ी? An electric dipole, as I said, is a system of two equal and opposite charges which are separated by a small and finite distance. ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक चार्ज आपका कामोटे में, एक चार्ज वाशी में, नहीं, ठीक है। सो एक फाइनाइट डिस्टेंस में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को अगर हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया आपका प्लस क्यू एंड दिस इज लेट्स से माइनस क्यू। दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली एल, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे दिस इज नोन एज अ डाइपोल। ये हो जाएगा भाई साहब आपका डाइपोल। तो व्हाट इज दैट डाइपोल? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल भी हैं और ऑपोजिट चार्जेस भी हैं, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज अ डाइपोल, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जनरली हम यहाँ पे इसको एल ना लेकर 2L लेते हैं, और 2L क्यों लेते हैं? ताकि हमारे कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो अगर हमने 2L ले लिया तो इसका एक्सिस पॉइंट में अपन इसको L ले सकते हैं, इसको L ले सकते हैं। अगर आपने L लिया तो यहाँ पे खामों का L/2 और L/2 आएगा। तो इस L के चक्कर में अपन ने इसको 2L ले लिया है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव टेकन इट। सो पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज 2L, दैट इज बेसिकली मेकिंग अप अ डाइपोल। तो यहाँ पे समझ लो A और B पे दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज हो भाई साहब आपका Q और दूसरा चार्ज हो माइनस क्यू। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे +5 है और यहाँ पे -3, ये डाइपोल नहीं बनाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ डाइपोल, इट हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अगर ये +5 है तो बच्चा पार्टी ये -5 होगा, अगर ये -3 है तो ये +3 होगा, तभी डाइपोल बनेगा, ठीक है। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। अभी डाइपोल का भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है।
तो लेकिन अगर हम P दैट इज डाइपोल इज इक्वल टू Q इंटू 2L, 2L से कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं पे आपका Q इंटू L भी लिखा रह सकता है अगर आपका भाई साहब, तो बेसिकली ईदर ऑफ द टू चार्जेस इंटू L दैट इज बेसिकली डाइपोल, ठीक है। ईदर ऑफ द टू चार्जेस मतलब Q ले लो या माइनस Q ले लो, आपका माइनस में नहीं होगा लेकिन Q और माइनस Q ईदर ऑफ द टू चार्जेस इंटू L, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये 2QL क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने 2L लिया हुआ है, अदरवाइज QL भी चलेगा। अगर आपने भाई साहब डिस्टेंस को L लिया है, लेट्स से इस डिस्टेंस को आपने L लिया है तो डाइपोल क्या हो जाएगा Q इंटू L। अगर डिस्टेंस को आपने 2L लिया है तो डाइपोल क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, सिंपल, समझ में आ रहा है। ईदर ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कंफ्यूज मत होइए, किसी किसी किताबों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ भाई साहब Q इंटू L, which is absolutely fine if L is the distance between the two charges. If this distance is taken as 2L, then it will be Q into 2L, 2QL. Are we clear on this one, people? ठीक है, clear. In the SI system, P is measured in coulomb meter. तो SI system में अपन P को कैसे मेजर करते हैं, कूलम मीटर में मेजर करते हैं। Are we clear? Absolutely clear on this one, ठीक है। तो चार्ज हो गया कूलम में और ये हो गया भाई साहब मीटर में, तो कूलम मीटर हो गया आपका डाइपोल का यूनिट। ओके, चलिए इसी पे एक कहते हैं सवाल, ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है, देखो, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, एक सिस्टम है भाई साहब जहां पे दो चार्जेस दिए हुए हैं आपको, एक चार्ज है भाई साहब QB और एक चार्ज है आपका QA, प्लस और माइनस, ठीक है, वाओ, ठीक है। तो ये कितना है भाई साहब आपका, ये आपका प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये वाला चार्ज कितना है देखो, माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अलोंग द, अभी देखो कहां पे, देखो ए का जो पोजीशन है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, माइनस 15 सेंटीमीटर, तो मतलब जेड एक्सिस पे नीचे की तरफ, ये हो गया QA। क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस 15, ठीक है। ओके, बी का जो पोजीशन है 0 0, तो बी की पोजीशन क्या है, देखो बी की पोजीशन है 0 0 प्लस 15 और ए की पोजीशन क्या है 0 0 माइनस 15, तो 0 0 माइनस 15 विल बी समवेयर हियर जेड एक्सिस में और 0 0 प्लस 15 विल बी समवेयर हियर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 15 और ये वाला 15, तो डिस्टेंस कितना हो गया 30। तो आप 2L लो या भाई साहब L लो, दैट इज बोथ इक्वल टू भाई साहब कितना 30। आर वी क्लियर। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा बोलो, डाइपोल मोमेंट ईदर ऑफ द टू चार्जेस दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर इस सेंटीमीटर में है, ओके, कूलम सेंटीमीटर होगा, ये कूलम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 75 है ना, इंटू 10⁻⁻7 कूलम सेंटीमीटर। तो अगर मीटर करना है तो आपका हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। तो अगर भाई साहब आपने इसको इधर ले लिया तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है, क्या रहे, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अभी डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। डाइपोल विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम B टू A। तो आपका भाई साहब ये B है विच इज नेगेटिव, डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पीपल, डाइपोल आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू द लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस विच कैन बी इक्वल टू Q इंटू 2L और Q इंटू L, ये हो गया डाइपोल का भाई साहब मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, चलिए भाई साहब ये सवाल है, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 3 चार्जेस प्लस Q and minus 2Q are placed at the vertices. What is the dipole moment of a system? ओके, चलिए भाई साहब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये एक आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो प्लस Q रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या रखा हुआ है प्लस Q और यहाँ पे रखा हुआ है माइनस 2Q, ठीक है। लेट्स से आपका ये हो गया A, B और C। आपको सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है, समझ में आता, ठीक है। ओके, डाइपोल कभी बनेगा, ऑपोजिट ऑफ, क्या इन दोनों के बीच में डाइपोल बन सकता है, नहीं, तो बनना है तो इनके बीच में ही बनेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस माइनस 2Q को अपन क्या लिख सकते हैं,
दो चार्जेस का लिख सकते हैं भाई साहब, माइनस टू क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू और माइनस क्यू ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस टू क्यू ऐसे ही बना होगा, तो एक प्लस क्यू के साथ ये वाला माइनस क्यू डाइपोल बन गया और एक प्लस क्यू के साथ ये वाला माइनस क्यू आपका डाइपोल बन गया सी, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ, ये इस तरफ, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो भाई साहब। देखो ये एक डाइपोल बन गया और ये एक डाइपोल बन गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बीच में, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई साहब बीच में, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 60, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 60, ये कितना हो गया आपका 30, ये कितना हो गया आपका 30, दोनों के बीच में कितना है भाई साहब, चलो लेट्स से 60 डिग्रीज है ना, 60 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, देखो डाइपोल का भाई साहब कितना कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो आपका देखो ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, बीच में एंगल कितने का है 60 डिग्री का, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस ऑफ 60, क्या समझ में आ रहा है, यही होता है ना रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हो गया आपका पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 दैट इज 1/2, तो ये कैंसिल ये कितना आ गया बोलो 3p स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 3p स्क्वायर मतलब p इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अभी p की वैल्यू क्या हो गई, q इंटू भाई साहब आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, देखो अगर आप देखोगे आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपका भाई साहब लेट्स से इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो a है, तो q इंटू a ये हो गया p का वैल्यू इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। सो अंडर रूट 3 QA ये हो जाएगा आपका भाई साहब डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अभी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जब इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 का और ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 का, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा आपका 90 का, ठीक है। सो एक्ट्स अलोंग CD which bisects the angle, so this resultant dipole will be acting along this which bisects the angle C, clear है, are we clear, okay। एक मिनट भाई साहब, जस्ट एक मिनट, अब ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक डाइपोल की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक उसके एक्सियल लाइन पे और एक उसके इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अपन पहले देखेंगे एक्सियल लाइन पे, इन डेरिवेशंस को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके आगे आपका जो मेन डेरिवेशन है वो होगा, ठीक है। तो लेट्स से दो डाइपोल्स हैं Q प्लस और ये आपका माइनस Q और ये प्लस Q है, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके तो आप देखो लेट्स से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r और यहाँ पे लेट्स से 2l जो हमने लिया हुआ है, तो इसके मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा l, और ये वाला कितना हो जाएगा l, ये माइनस Q से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है r प्लस l, और प्लस Q से कितने डिस्टेंस पे होगा r माइनस l, तो E1 ये इधर होगा दिस और E2 होगा ये, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा E1 माइनस E2, तो अगर आप देखोगे 2pr, अभी अगर ये बहुत कम है तो अपन इसको 2p/r³ लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे एक डाइपोल है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ डाइपोल, ये एक एक्सियल पॉइंट ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अ लाइन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका एक चार्ज है लेट्स से माइनस Q, और यहाँ पे एक चार्ज है लेट्स से प्लस Q, ये एक चार्ज माइनस Q का और ये एक चार्ज प्लस Q का। आप यहाँ पे किसी पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे आपको इस, तो आपका यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन है, ठीक है। ओके तो आपने देखो मैंने आपको बोला कि आप L ले सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए आपने क्या ले लिया है भाई साहब, डाइपोल लेंथ इज हाउ मच 2L, ठीक है। ओके 2L ले लिया आपने, ओके तो आप भाई साहब यहां पे अगर कंसीडर करोगे तो ये आपका कितना हो गया, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच L, और ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका L, सो दिस इज L और ये हो गया आपका L, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके लेट्स से इस मिड एक्सिस से, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका, लेट्स से ये आपका R, ठीक है, क्लियर है, ये आपका R है। ओके अभी इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा बोलो, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस,
सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा बॉडी, बोलो बोलो बोलो, ये हो जाएगा कितना, देखो ये आपका R और ये आपका L, ठीक है, तो R माइनस L हो जाएगा ये भाई साहब, दिस विल बी R माइनस L। और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस भाई साहब, दिस विल बी R और प्लस L, सो दिस विल बी R प्लस L। अभी ध्यान दो, इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी भाई साहब, इधर, लेट्स से आपका E1 है, प्लस Q की वजह से ये E1 हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, E2 इधर माइनस की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अभी अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, कितना हो जाएगा बोलो, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, अरे K और ये हो गया Q बाई कितना, L का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, ये हो गया E1 माइनस E2, E2 कितना हो जाएगा बोलो, K Q अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हाँ, तो यहां पे आपका देखो K Q, ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपका, ठीक है। देखो चार्ज में तुम माइनस Q क्यों लोगे, चार्ज में माइनस Q क्यों लोगे, तुमने E2 को ऑलरेडी नेगेटिव लिया हुआ है ना, इसलिए तो माइनस Q लिखा, वरना E1 प्लस E2 होता था, तुम ऑलरेडी माइनस यहां पे ले रहे हो ना, या तो तुम ऐसा लो E1 प्लस E2 और यहां पे माइनस लो, या तो तुमने अगर पहले से ही माइनस लिया हुआ है, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑफ E1 को इधर क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि आपने डायरेक्शन E2 को क्या माना है, इस तरफ है ना भाई साहब, ठीक है, तो आप नेगेटिव को ऑलरेडी कंसिडरेशन में ले रहे हो, इधर यू डू दिस और दैट, अदरवाइज माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ओके। कितना बनता है ये बोलो, दिस विल बी के क्यू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर माइनस एल इंटू, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है इसका स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है इसका स्क्वायर, तो दैट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका भाई साहब स्क्वायर, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बोलो, प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका के क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, नहीं 2RL ना, आर प्लस एल है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, 2RL अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे के क्यू और इधर कितना हो गया भाई साहब आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन 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 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो के क्यू और ये हो गया आपका आर एल, ठीक है, 4KQRL 2R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका कितना है, तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल, ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कितना हो गया बोलो 4KQ, के की वैल्यू आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, KQRL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ दो चीजें हैं, अगर आपका भाई साहब आर जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज 2 लार्जर देन एल, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी, दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस 0, तो आर स्क्वायर का ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 4KQRL, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4KQRL अपॉन आर रेज टू 4, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा Q, तो ये हो गया 4KQL अपॉन आर क्यू। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ओके। अभी देखो यहां पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट है 2Q इंटू एल, है कि नहीं, Q इंटू 2L है बेसिकली, ठीक
ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपका कितना है, Q इंटू 2L है, तो मतलब 2QL है। अभी अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के लिखूं 2 इंटू 2QL और ये हो गया आपका, और ये हो गया RQ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2PK अपॉन R का Q। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, 2PK अपॉन R का Q। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका ये क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2PK अपॉन R का Q। ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, दैट विल बी K अपॉन R का Q। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। कैप से भी डिनोट किया जाता है ना, किससे, डाइपोल मोमेंट को कैपिटल P भी लिख सकते हो, जनरली स्मॉल p होता है, लेकिन आप वेक्टर से ऐसे डिनोट, जब आप वेक्टर में डिनोट कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी E इक्वल टू 2PK अपॉन R का Q। तो ध्यान रखिए आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सियल, ठीक है, दिस विल बी एक्सियल, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2PK अपॉन कितना हो गया ये R का Q, 2PK अपॉन R का Q, ये हो गया आपका एक्सियल, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ये कितना हो जाएगा 2PK अपॉन X का Q। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब इक्वेटोरियल प्लेन की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ द इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जस्ट वन मोमेंट, ओके। चलो भाई साहब यहां पे अभी फाइंड आउट करना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों डाइपोल्स हैं, इनके बीच में जो पॉइंट है उस पे कितना होगा, ठीक है, ओके। तो भाई साहब ओ भाई साहब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली E और ये हो गया E1, यहाँ पे भाई साहब E मतलब एक ही ले लो भाई साहब, यहाँ पे ये यार R हो गया, ये L हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका देखो इधर करके करना पड़ेगा, चलो भाई साहब आपका यहाँ पे लेट्स से आपका डाइपोल हो गया, ओके। सो लुक एट दिस पीपल, दिस इज बेसिकली माइनस Q एंड लेट्स से दिस इज आपका प्लस Q, ठीक है, ओके। आपने कोई इक्वेटोरियल एक्सिस लिया हुआ है, दिस इज बेसिकली इक्वेटोरियल एक्सिस, ये आपका भाई साहब इक्वेटोरियल एक्सिस है। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका देखो इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अभी ये किसकी तरफ जाएगा भाई साहब, माइनस की तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये किधर जा रहा है भाई साहब, इधर जाएगा, है कि नहीं, माइनस की तरफ जाएगा, और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके ओके। अभी देखो जैसे यहाँ पे आपने R और ये L रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब थीटा किसकी वैल्यू की, थीटा कौन सा एंगल लिया हुआ है यहाँ, अच्छा ठीक है, चलिए ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, इसका कंपोनेंट्स निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है बच्चा वाड़ी, ओके। सो लेट्स से ये वाला जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। अभी आप देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच L एंड दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच L, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस L, ये हो गया डिस्टेंस आपका L, ठीक है, ओके। अपन ने इस वाले डिस्टेंस को मतलब इक्वेटोरियल, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ठीक है, अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस R from
द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सो यहां पे भाई साहब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आर। क्लियर है पीपल हम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दिस इज थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा। तो आपका भाई साहब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, अरे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो ये पॉइंट पी है ना, दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, ये भी आपका ये हो गया। ओके, अभी ध्यान दो यहाँ पे, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं कंपोनेंट्स निकालूं, इधर देखो, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इधर, ठीक है, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा, समझ में आ रहा है। देखो जैसे अगर मैं बोलूं ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला देखो ध्यान से, ये कितना होगा, के क्यू अपॉन बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इस तरफ होगा, ये भाई साहब है इस तरफ, देखो ये इस तरफ है और ये इस तरफ, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब, थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये भी उतना ही होगा ना, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, आर बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट पीपल, ठीक है। ओके, तो चलो भाई साहब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और देखो अगर मैं यहाँ पे इसका भाई साहब इधर लूं, देखो ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है कि नहीं, तो इसका भाई साहब कंपोनेंट किधर होगा, इस तरफ, दैट इज हाउ मच, ई साइन थीटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नींद आ रही है बहुत जोर से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहां पे कितना हो गया, ई साइन थीटा विच इज अपवर्ड्स, ठीक है। ये आपका नेगेटिव चार्ज के लिए भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये वाला इधर आएगा भाई साहब, है ना, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, ई साइन थीटा, तो आपका भाई साहब ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अलोंग वाई एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग वाई एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ई वाई विल बी इक्वल टू 0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो आपका भाई साहब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग भाई साहब आपका एक्स एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, ये आपका ई है, ठीक है, ये आपका ई है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो गया बोलो, ई कॉस थीटा, नेगेटिव चार्ज का देखो ये आपका भाई साहब नहीं, ई ये कितना है, ई है, ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ई कॉस थीटा क्यों होगा, क्या, अरे भाई साहब ये ई इधर है, थीटा इधर है, बोलो क्या 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 देखो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसका कंपोनेंट अगर मैंने निकाला ई का, ये हो गया ई कॉस थीटा और ये हो गया ई साइन थीटा। ओके, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है, अरे रुको ना, जब पूछा था तब तो नहीं बता पाए, ये माइनस क्यू है तो इसके वजह से कितना होगा, ई, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका ई। ओके, ई का भाई साहब अभी इस वाले ई का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये अगर थीटा है तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा, देखो ये थीटा है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, देखो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अरे भाई साहब ये ई इधर जा रहा है, ये ई इधर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है भाई साहब, ठीक है, तो ये थीटा हुआ, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, इस चीज इसको समझो, ये भाई साहब पैरेलल है, ये हुआ थीटा, ये वाला एंगल देखो ध्यान से 90, तो ये वाला कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अभी इस पे आओ, ये 90 है, ये 90 है, जिसमें ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग थीटा। ओके, तो अभी आपका भाई साहब ये अगर थीटा है भाई साहब,
तो आप बताओ यहाँ पे ये सॉरी, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये आपका डायरेक्टेड है इस तरफ, ठीक है, दिस इज बेसिकली डायरेक्टेड दिस साइड। तो आपका ई साइन थीटा और ई साइन थीटा भाई साहब कैंसिल हो गया, अभी ई कॉस थीटा इसका और ई कॉस थीटा इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी गेटिंग, ये आपका प्लस होता जाएगा, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट इज हाउ मच, 2e cos थीटा, ठीक है। और एक बेटर डायग्राम आपका दिखा दूं यहाँ पे, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम था, तो लेट्स से आप इसको ऐसे देख लो, ये ठीक है, सो इफ लेट्स से हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका इसको देखो, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है बराबर इक्वेटोरियल प्लेन पे, लेट्स से यहाँ पे हमने एक्स लिया, आर लिया था, यहाँ पे एक्स लिया है, ठीक है, ये वाला भाई साहब आपका आर हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अभी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, ये आपका क्या हो रहा है, देखो जेड बन रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, तो ये हो गया आपका थीटा। अभी आपका डाइपोल किसकी तरफ से, इधर से इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, E2 है ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा, E sin थीटा, ये वाला भाई साहब E1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, लेकिन E2 और E1 बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, यहाँ पे आपका प्लस होता जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो इधर देख लो, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, so maybe I have not put these configurations out here, let's say ये अगर आपका थीटा है, ठीक है, लेट्स से ये वाला भाई साहब आपका है थीटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ये इक्वल हो जाता है थीटा, ओके, ये वाला भी आपका थीटा है, देखो क्योंकि ये पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से इक्वल एंगल्स बनाएगा, any point on the perpendicular bisector is basically going to make equal angles, ठीक है, with the extreme points। तो अगर इसने थीटा बनाया तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली दिस वन विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका क्या है, दिस इज बेसिकली पैरेलल, पैरेलल है तो ये क्या हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अभी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला भी आपका थीटा है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये Q ड्यू टू दिस प्लस Q, अगर प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आप तो क्या होगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो इस तरफ होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज हाउ मच, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड भाई साहब क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दोनों का मैग्नीट्यूड भाई साहब आपका सेम, तो हम यहां पे बोल सकते हैं E ऑफ प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E ऑफ माइनस Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता, ओके। तो अभी देखो यहां पे आपका E माइनस Q इस तरफ है और E प्लस Q इस तरफ है, ठीक है, इन दोनों का भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो E माइनस E प्लस Q है, अभी इसका कितना हो जाएगा बोलो, E साइन थीटा, ये हो गया आपका E साइन थीटा इस तरफ, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, ये थीटा है तो इस तरफ अगर हम लेंगे तो ये हो गया E साइन थीटा, दोनों भी लेट्स से हम E के बराबर है, लेट्स से दोनों E के बराबर है, समझ में आ रहा है, E मॉड ऑफ EQ प्लस ये मॉड ऑफ E माइनस Q दैट विल बी इक्वल टू E, क्योंकि हमको देखो दोनों भी वैल्यूज क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, ठीक है। सो लेट्स से हमने E मान लिया इसका, ठीक है, E की वैल्यू कितनी है, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, this both are equal to E, that is KQ by R square plus L का स्क्वायर, ओके। अभी देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इस तरफ है तो इसका वैल्यू इधर E sin थीटा हो गया और इधर कितना E sin थीटा, तो ये दोनों आपके आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन इन दोनों का देखो ये E है तो इधर कितना हो गया E cos थीटा, ये E है तो इधर कितना हो गया E cos थीटा, so that will be how much, E cos थीटा plus E cos थीटा, that is how much, 2E cos of थीटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी हाउ मच, 2E cos थीटा, तो रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अभी भाई साहब ई वाई की वैल्यू कितनी आई, 0, और ई एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचा, हाँ भाई साहब अंगड़ाइया ले ले तू, ई एक्स का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, ई एक्स का भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ई एक्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, अभी इस ई एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, देखो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स एक्सिस पे, दैट इज इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू आई है भाई साहब 2e ऑफ कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे 2e, e की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं, 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बोलो, देखो यहाँ पे थीटा है, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। इस ट्राइंगल में देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो कॉस ऑफ थीटा विल बी हाउ मच, एल अपॉन भाई साहब क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखो अगर हम यहां पे करते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻1 इंटू 2⁻½ दैट विल बी हाउ मच 2⁻3/2। तो यहां पे भी क्या है आपका, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया 3/2, ठीक है। सो इसको भाई साहब कर लो, यहां पे कितना आ गया 2kql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज्ड टू 3/2। आर वी गेटिंग दिस? अभी अगेन वही सिचुएशन कि भाई साहब अगर आपका ये आर जो डिस्टेंस है, ठीक है, इफ दिस डिस्टेंस इज टू फार अवे, ठीक है, इफ आर इज फार 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 ग्रेटर देन एल, सो व्हाट डू वी डू पीपल, हम यहां पे भाई साहब हो जाएगा क्या 2kql अपॉन, इसको इग्नोर कर सकते हैं, आर स्क्यूड 3/2, कैंसिल कैंसिल, ठीक है, क्या हो गया, तो 2kql अपॉन आर का क्या आ गया q, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम बैठे बैठे फैला रहे हो, अभी भाई साहब मैं इतनी देर से खड़ा हूं 2 बजे से, अगर मैं फैलने लगा तो फिर तुम्हारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा E, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अभी देखो ठीक है, यहां पे हो गया आपका 2q और ये हो गया l, ठीक है, 2ql कितना हो जाएगा आपका, देखो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, अरे रुक q इंटू 2l, तो ये कितना हो जाएगा 2ql। तो इस 2ql को अपन क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया आपका p/r का q, ठीक है, pq बाई r का q, सॉरी p और k, pk/r का q, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k p अपॉन r का क्यूब अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये आपका हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है। और ये भाई साहब आपका क्या हो गया एक्सियल, ये कहां चला गया भाई साहब, इतना मेहनत किया, ठीक है। हाँ, तो इक्वेट अगर कोई डाइपोल है, ठीक है, कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट आपको p दिया हुआ है, तो उसका अगर एक्सियल पॉइंट पे कोई डिस्टेंस है, ठीक है, जो उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 2pk अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में भाई साहब क्या हो जाएगा pk अपॉन आर का क्यूब। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर, ठीक है। ओके, फटाफट से भाई साहब इसके बाद का डेफिनेशन देख लेते हैं भाई साहब। ओके, चलो भाई साहब यहां पे देखते हैं, अभी हम ना तो एक्सियल पॉइंट पे ले रहे हैं और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हम एक ऐसे आर्बिट्री पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एन आर्बिट्री पॉइंट, ये आपका एक डाइपोल है, ठीक है, -q और +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ठीक है, और ये लेट्स से आपका l मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, और ये आपका एक पॉइंट है s, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि भाई साहब किसी डाइपोल का अगर एक्सियल पे आप ले रहे हो तो क्या होगा भाई साहब, एक्सियल पे होगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल पे ले रहे हो भाई साहब तो क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव किया भाई साहब, इक्वेटोरियल पे ले रहे हैं अगर हम, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, ये आपका pk/r क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वेटोरियल पे ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी यहां पे ध्यान देना है डेरिवेशन पे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। ओके,
तो आपका इक्वेटोरियल पे क्या होगा भाई साहब, पी के या के पी अपॉन आर क्यू, वेर पी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, क्यू इंटू 2l है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने डाइपोल लिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, ओके। इस पॉइंट का इसके मिड पॉइंट से एंगल बन रहा है थीटा। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे मिड पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है आपका, थीटा। डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा भाई साहब, डाइपोल मूवमेंट आपका इस तरफ से इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी ध्यान से देखना, ठीक है, इस डाइपोल का हमारा क्या बन रहा है, एंगल थीटा। तो अगर मैंने इस डाइपोल का कंपोनेंट इस तरफ निकाला तो कितना होगा, पी कॉस थीटा होगा। ध्यान देना भाई साहब, यही वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो ये डाइपोल मोमेंट है पी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक है, ओके। अभी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास एक डाइपोल है जिसका वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा है, और उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा, तो नहीं के पी नहीं होगा यहाँ पे, समझो समझो समझो, ये क्या हो गया, देखो पी है इधर, पी साइन थीटा इधर, पी कॉस थीटा इधर, पी कॉस थीटा के, अभी देखो सब कुछ भूल जाओ, ये डाइपोल है पी कॉस थीटा, ये सारा सब कुछ भूल जाओ भाई सर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सो यू हैव अ डाइपोल आउट हियर जिसका वैल्यू कितना है, पी कॉस थीटा, और यहां पे एक एक्सियल पॉइंट पे एस पॉइंट है, लेट्स से ये डिस्टेंस है तुम्हारा यहां से एक्स, ठीक है। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा तुम्हारा डाइपोल है, भाई साहब पी कॉस थीटा, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी इसको समझो, ये पी साइन थीटा है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये है पी साइन थीटा, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी आपका इक्वेटोरियल पॉइंट लग जाएगा, ये एक्सियल लगेगा, आई एम सो सॉरी, ये वाला एक्सियल लगेगा, तो दिस विल बी 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, और इधर क्या हो जाएगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, सिंपल शॉर्ट, ठीक है। इस सिंपल शॉर्ट को समझने के लिए आप अगर यहां से समझते थे तो डिफिकल्ट होता था, ठीक है, इसीलिए हमने पहले ये देखा कि भाई साहब पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में क्या वैल्यूज आती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होती है, तो इसीलिए ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो आपके हिसाब से अभी भाई साहब इसको फाइंड आउट करना है, तो लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, सिंपल, आप अगर देखोगे भाई साहब तो ई ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, ई एक्सियल कितना हो जाएगा, 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, एक्सियल 2 के, अभी देखो एक्सियल मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये पी कॉस थीटा एक्सियल है, इस पे भाई साहब एक पॉइंट जो डिस्टेंस एक्स पे है, तो इसका डिस्टेंस अगर डाइपोल से एक्स पे है तो आपका कितना होता है, तो ई एक्सियल यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ई ऑफ एक्सियल, सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चा पार्टी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहां पे हो जाएगा 2 के तो होगा, और P के जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, ये वाले P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी वेक्टर को अगर आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो, ठीक है, तो उस वेक्टर को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग इट इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ये हो गया 2, अभी ये हो गया आपका भाई साहब P cos थीटा अपॉन x का क्यूब, ये हो गया एक्सियल। इक्वेटोरियल बोलो, इक्वेटोरियल, दिस विल बी E इक्वेटोरियल, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका देखो अभी इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे ये पॉइंट है, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर बी क्लियर, ठीक है, यही है बेसिकली, इतना बड़ा डेरिवेशन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इतना सब कुछ किया है, ये हो गया आपका, देखो आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो आपका जो P था वो P cos थीटा में परिवर्तित हुआ है, आपका जो P था वो P sin थीटा में परिवर्तित हुआ है, ठीक है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के हिसाब से। अभी देखो आपका भाई साहब E नेट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस का स्क्वायर, दैट इज E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, तो यहाँ पे 2kp cos थीटा एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, kp sin थीटा का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे देखो kp और एक्स क्यूब, ये भाई साहब बाहर आ जाएगा, भाई साहब सिंपल है, देखो सिंपल सिंपल सिंपल, अरे सिंपल है सिंपल है सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे हो गया आपका 4
के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस 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 यहाँ पे के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स रेज टू 6। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हो, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एक्स रेज टू 6, इसको कॉमन निकाल सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या बच्चा बोलो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ओके। अब भाई साहब इसको बाहर करो तो यहाँ पे हो गया के पी और एक्स क्यू, है कि नहीं, इससे बाहर निकाले तो ये बचा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बोलो, अभी 4 cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा ही लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, के पी बाई एक्स क्यू, और हो गया भाई साहब आपका 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आता, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल नहीं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है ओके। तो अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपको हमेशा मालूम है कि अगर हम इस tan अल्फा की बात करें, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ध्यान से देखो ये अल्फा है भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बाई एक्सियल। भाई देखो इस इक्वेटोरियल को इधर लोगे तो ई इक्वेटोरियल ना अपॉन ई एक्सियल, tan अल्फा इज व्हाट, tan अल्फा विल बी ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, ठीक है। ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल मतलब कितना हो जाएगा, देखो tan अल्फा की वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। हम यहाँ पे मॉड वैल्यूज ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे ई एक्सियल की इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू के पी साइन थीटा बाई एक्स का क्यू, और ई एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यू। कैंसिलम 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 कैंसिलम, तो यहाँ पे हो गया 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan थीटा, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा या tan थीटा बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। अगर किसी, तो ये एक मतलब ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहने वाली, डेरिवेशंस को समझिए, डेरिवेशन से आप लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू बेसिकली गो अलोंग विद दिस, ठीक है ओके ओके ओके। अभी भी 5 मिनट बाकी है, टेंशन बिल्कुल लो मत, लाइफ में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ओके ओके ओके। ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे P बाई एक्स का क्यूब द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब हम एक्सियल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम एक्सियल की बात कर रहे हैं, ये आपका किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। आपका जो एक्सियल फील्ड आया, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, आपका ई जो एक्सियल आया है भाई साहब, वो कितना आया है बोलो, नहीं ये एक्सियल नहीं था ना, इक्वेटोरियल था ना, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल किधर आया भाई साहब ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली ई एक्स की डायरेक्शन में, हाँ के पी बाई आर क्यूब आया ना, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे इक्वेटोरियल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इस तरफ है, समझ में आ रहा है, और डाइपोल का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, तो दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसीलिए अपन इक्वेटोरियल को क्या लिखेंगे, माइनस के पी बाई आर क्यू। समझ में आ रहा है। अगर आपने इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखा ये चलेगा, पी की बाई आर क्यू, लेकिन अगर आपने भाई साहब मैग्नीट्यूड को हटाया तो ये होगा माइनस पी के बाई आर क्यू। इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है, बिकॉज डाइपोल इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात भाई साहब क्या, दूसरी बात क्या हो जाएगी, हाँ इसमें एक्सियल फील्ड में देखो यहाँ पे, ठीक है, आपका ये जो आया है वो क्या है भाई साहब, E1 माइनस E2 है ना, तो E1 का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर, तो E1 माइनस E2 का डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, देखो माइनस से प्लस की तरफ। तो मतलब आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है, तो मतलब आप जो ये ई एक्सियल किया है, इसका जब आप मॉड निकाल रहे हैं तो भी ये 2p के अपॉन आर क्यूब होगा, और जब आप मॉड नहीं निकाल रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं ई एक्सियल, देन ऑल्सो इट विल बी 2p, मतलब ये दोनों भी सेम डायरेक्शंस में होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है, इधर से इधर, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, इधर से इधर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है
छोड़ दिया जाए? हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हाँ बोला ही तुमने, गलत कर दिया यार। जाओ ऐशी करो भाई साहब जीवन में।